Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Digital Logic Design. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Agenda of this experiment basically includes 5 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and the conclusion. The title of your today's experiment is to implement 4-bit parallel adder using full adders in LabVIEW software. Equipment needed for the experimentation is LabVIEW software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. The theme of our today's experiment is to understand about the binary parallel adder. So a parallel adder is an arithmetic combinational logic circuit that is used to add more than one bit of data simultaneously. We have already studied about the half adder and full adder circuits. So half adder circuit is basically used to add two single bit numbers without a carry. Then to overcome the problems of half adder, we have moved towards the full adder circuits, and a full adder circuits adds two single bit numbers by considering the carry. However, to add more than one bit of data in length simultaneously, a parallel adder is used. For example, we have a number 13 and we want to add 30 number into 9. So in the digital circuits, we have to convert the decimal numbers of 13 and 9 into the binary numbers. So the representation of 13 and 9 cannot be covered in the single bit numbers. Means we have more than one bits in the representation of these decimal numbers. For the addition of these numbers, we have to cover more than one bits adder. We have already talked about the half adders and full adder circuits. Half adder and full adder circuits are normally used to add single bit numbers, and when we want to add more than one bit based numbers, then we will basically need another circuit which is known as the parallel adder. Parallel adder आपके पास क्या करता है, वो बेसिकली फाइंड कर रहा होता है अरिथमेटिक सम को, जो आपके टू बाइनरी नंबर्स का आप लोग लेना चाहते हैं, वो टू बाइनरी नंबर्स जिसके अंदर आपके पास ग्रेटर देन वन बिट्स होती हैं. नॉर्मली वन के अलावा 1 एंड 0 के अलावा जितने भी डिजिट्स पे बेस्ड डिजिटल सर्किट्स में नंबर हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन में मोर देन वन जो आपके पास बिट्स होती हैं. तो अगर हमने 2 को 4 में ऐड करना है, 13 को 9 में ऐड करना है, और इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मोर देन वन बिट्स होती हैं. तो हम लोग इन नंबर्स को एक एडर को यूज करते हुए ऐड नहीं कर सकते. हमें जो है एक से ज्यादा एडर्स चाहिए होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बिट्स. ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल बिट पे के अकॉर्डिंग दो नंबर्स हों तो हम एक एडर को यूज करते हुए उन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. लेकिन अगर उन नंबर्स को हम लोग सिंगल बिट से शो नहीं कर सकते और उसमें मोर देन वन बिट डाटा होता है उन नंबर्स में, तो हमें एक से ज्यादा एडर्स की जरूरत पड़ती है. तो हम लोग जो है नॉर्मली फुल एडर सर्किट्स को यूज करते हैं पैरेलली, ताकि हम लोग जो है उन मोर देन वन बिट डाटा को ऐड कर सकें. फुल एडर हम सर्किट क्यों यूज करते हैं, हाफ एडर क्यों नहीं करते, क्योंकि फुल एडर जो है वो कैरी को कंसीडर कर रहा होता है. तो एक बिट से दो बिट्स की एडिशन से आपके पास जो कैरी जनरेट होता है उसको हम नेक्स्ट बिट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं. That's why we are going to use full adder circuits parallelly to add more than one bit data. A n-bit parallel adder requires n full adders to perform the operation. So
for the 2-bit number means we have n equals to 2. 2 adders are needed, while for 4-bit numbers 4 adders are needed, and so on. Parallel adders normally incorporate carry look ahead logic to ensure that carry propagation between subsequent stages of addition does not limit additional speed. So अभी हम कैरी लुक अहेड की बात कर रहे थे, तो हमारे पास जो है, अगर हम पैरेलल एडर्स में फुल एडर्स यूज कर रहे हैं तो एक एडर से आपके पास जो कैरी जनरेट होता है वो कैरी लुक एडर के थ्रू नेक्स्ट एडर में ऐड होगा। यही आपके पैरेलल एडर की जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को ये फिनोमेना शो करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है। ए के अंदर ए को हम लोग बाइनरी की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं 1011, बी को हम बाइनरी की फॉर्म में 1101 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अगर मैंने ए और बी को ऐड करना है तो इन दोनों नंबर्स में ए और बी में 4 बिट्स हैं, ठीक है। जब मेरे पास ए और बी दोनों में 4 बिट्स हैं तो इन दोनों को ऐड करने के लिए मुझे 4 फुल एडर्स जो है वो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि 4 बिट्स है 4 फुल एडर्स होंगे, अगर 2 बिट्स होती तो 2 एडर्स होते। तो जितनी बिट्स आपके किसी भी नंबर के अंदर होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है आप एडर्स लगाएंगे ताकि उन नंबर्स को ऐड कर सकें, ठीक है। अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ 1 को 1 में ऐड करना, पहली बिट है, पहले नंबर है मेरे पास, मीन्स नंबर तो ए और बी है लेकिन उसके अंदर जो पहले बिट है 1 और 1 है, 2 सिंगल बिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों सिंगल बिट्स को ऐड करने के लिए मैं अपना पहला फुल एडर लगाऊंगी। तो 1 और 1 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 2 बनता है, उसकी बाइनरी फॉर्म क्या है 01, 0 मेरे पास सम में आंसर में आ गया, 1 जो है वो एक कैरी बनेगा जिसको मैं कैरी आउट कहूंगी, ठीक है। फुल एडर जो है कैरी आउट शो करेगा और इस कैरी आउट को नेक्स्ट एडर के अंदर दे देगा, ठीक है। अब अगला जो मेरे पास सिंगल बिट नंबर्स हैं वो है 1 और 0। अब 1 और 0 को मैं ऐड करती हूँ तो सिंपल 1 होता है, लेकिन मेरे पास प्रीवियस स्टेज से कैरी लुक अहेड के थ्रू 1 कैरी आ रहा था जिसको मैंने कैरी इन कंसीडर किया है। तो 1 + 1 = 2, 2 की बाइनरी फॉर्म 01 है, तो मुझे सेकेंड जो एडर मैं यहाँ पे फुल एडर लगा रही हूँ उससे भी मेरे पास एक 1 जो है वो एज अ कैरी जनरेट होगा। तो 0 1 1 ऊपर चला जाएगा मेरे पास, फिर मैं 1 + 1 करूंगी थर्ड एडर को यूज करते हुए, तो 2 होगा, 2 में 0 मेरे पास सामने आ जाएगा और 1 मेरे पास कैरी बन जाएगा। अब इस 1 को फिर मैं अपने फोर्थ नंबर्स की एडिशन में दूंगी। 4 जो मेरे पास फोर्थ पोजीशन पे जो मेरे पास नंबर्स हैं वो भी सिंगल बिट नंबर्स हैं, उनको ऐड करने के लिए भी मुझे फोर्थ फुल एडर यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 + 1 + 1 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 3 बनेगा। अब 3 जो है वो बेसिकली क्या है, आप एक 3 की बाइनरी फॉर्म जो है वो आपके पास होती है 1 + 1, ठीक है। तो 1 + 1 मेरे पास मीन्स 1 और 1 होती है, 1 + 1 + 1 3 की बाइनरी फॉर्म 1 और 1, तो सामने मेरे पास 1 आ जाएगा और कैरी आउट जो मेरे पास इस पूरे बाइनरी एडर पैरेलल एडर का जो निकलेगा कैरी आउट वो 1 होगा। सो लास्ट स्लाइड में हमारे पास 2 नंबर्स थे ए और बी जिनको हम ऐड कर रहे थे। ए और बी दोनों में 4 बिट्स थी, 4 बिट्स को जब हमने ऐड किया था तो हमारे पास 4 आउटपुट्स थी, मतलब आउटपुट जो जनरेट हो रही थी उसके अंदर भी 4 बिट्स थी। और इसके अलावा हमारे पास जो है कैरी आउट था, जो हमारे लास्ट नंबर को ऐड करने से आपके पास एक जो कैरी जनरेट हो रहा था उसको हमने सी आउट का नाम दे दिया था। और इसके अलावा जब हमने अपनी एडिशन स्टार्ट की थी दोनों नंबर्स को ऐड करने की, तो एक नंबर जो है आप लोग कंसीडर कर रहे थे जिसको हम कैरी इन कह रहे थे, जो हमारे पास प्रीवियस किसी स्टेज से आ रहा था। अगर तो आपके पास नहीं आ रहा होता नंबर तो आप कैरी इन को 0 कंसीडर कर लेते हो, अगर आ रहा होता है तो कंसीडर 1 करते हो। तो बेसिकली उसी फिनोमेना को लेते हुए हम लोग 4 बिट फुल एडर का सर्किट डिजाइन करते हैं। आपके पास 4 बिट फुल एडर की एक आईसी अवेलेबल होती है जिसका नाम होता है 74LS83, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली जो है 4 बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए डिजाइन होती है। अब क्योंकि हम इसके अंदर जो है
टू नंबर्स को ऐड करें और वो दोनों नंबर्स ए और बी जो हैं वो 4 बिट्स पे जो है कंसिस्ट कर रहे हैं। तो ए नंबर के अंदर 4 बिट्स हैं, तो चारों को मैंने क्या नाम दे दिया, A0, A1, A2 और A3। बी नंबर के अंदर भी 4 बिट्स थी, तो उनको मैंने नाम दे दिया B0, B1, B2, B3। ठीक है, तो इन दोनों ए और बी को ऐड करने से मेरे पास जो सम जनरेट हुआ, सम जो आउटपुट थी वो भी 4 बिट्स थी, उनको मैंने नाम दे दिया S0, S1, S2 एंड S3। कैरी इन जो मेरे पास प्रीवियस स्टेज से आ रहा था, लास्ट केस में हमारे पास कोई कैरी इन नहीं आ रहा था, तो हमने कंसीडर नहीं किया। अगर आ रहा होता है तो हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं, जो हमारे पिछले किसी एडर को यूज करने से जनरेट होता है। कैरी आउट बेसिकली वो कैरी है जो आपके ए और बी के लास्ट नंबर को ऐड करने से, लास्ट बिट्स को ऐड करने से कैरी जनरेट होता है, तो उसको हमने कैरी आउट का नाम दे दिया, जो हमारे पिछले एग्जाम्पल में जनरेट हो रहा है। सो इस तरह से हम लोग जो है नंबर्स की दोनों नंबर्स के बिट्स को कंसीडर करते हुए, आउटपुट को कंसीडर करते हुए फुल एडर का सर्किट, पैरेलल फुल एडर का सर्किट जो है वो शो कर सकते हैं। पैरेलल एडर के अंदर हम लोग फुल एडर्स जो है वो उनको माउंट करते हैं, और फुल एडर्स का जो नंबर है वो हम डिसाइड करते हैं अपने जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे होते हैं उनके अंदर मौजूद बिट्स के अकॉर्डिंग। सो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर है, ए और बी दो नंबर्स हैं, उन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, और उन दोनों नंबर्स में जो है 4 बिट्स हैं। सो उन 4 बिट्स के अकॉर्डिंग हम लोग पैरेलल एडर के अंदर 4 फुल एडर्स लगाएंगे। ठीक है, तो 4 फुल एडर्स लगेंगे। सबसे पहले अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूं तो फुल एडर 1 जो है वो बेसिकली आपके लिए होगा लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स को ऐड करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास फुल एडर है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को ऐड करने के लिए होगा। सो फर्स्ट जो मेरा फुल एडर है, राइट हैंड साइड से मैं अपनी एडिशन को स्टार्ट करूंगी ऑलवेज, और मेरा जो फर्स्ट फुल एडर है वो पहले तो प्रीवियस जैसे किसी कैरी को अगर उसने लेना होगा तो लेगा, अगर नहीं लेना होगा तो 0 कंसीडर करेगा। अब मैं इस जगह पर इस पैरेलल एडर के अंदर प्रीवियस स्टेज से कोई कैरी नहीं ले रही, तो इसलिए मैंने 0 एंटर किया है कैरी इन के अकॉर्डिंग। देन A0 और B0, ए और बी जो है दो नंबर्स हैं उनकी लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, A0 और B0। इन दोनों की एडिशन से मीन्स दोनों बिट्स के एडिशन से, लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स के एडिशन से जो मेरे पास सम मिल रहा है मुझे वो है S0, और जो कैरी है वो C आउट है, उसको मैंने नेक्स्ट फुल एडर में दे देना है। सेकेंड फुल एडर जो है वो डिजाइन हुआ हुआ है सेकेंड जो आपके पास 2 सिंगल बिट नंबर्स हैं उनके लिए, उसमें भी सेम सीक्वेंस है, जो बिट्स हैं वो A1 और B1 हैं, उन दोनों को ऐड कर रही हूँ। उनको ऐड करने से मेरे पास S1 सम जनरेट हो रहा है। इसके अलावा जो कैरी मिल रहा है इस फुल एडर के अकॉर्डिंग वो है C1। देन C1 को मैं थर्ड एडर में दे रही हूँ। थर्ड एडर जो है मेरे पास फुल एडर जो है वो बेसिकली डिजाइन हुआ है 2 सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करने के लिए। वो दोनों सिंगल बिट नंबर जो है वो थर्ड पोजीशन पर हैं ए और बी के, तो इनकी एडिशन से मेरे पास जो कैरी जनरेट हो रहा है वो C2 है। देन C2 को मैं फोर्थ एडर में दे रही हूँ। फोर्थ फुल एडर जो है वो बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को ऐड करने के लिए यूज हो रहा है, और इससे जो मेरे पास कैरी मिल रहा है मुझे वो क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे मिल रहा है तो वो मेरे पूरे पैरेलल एडर का कैरी आउट है, इसलिए मैंने उसको नाम दे दिया C आउट का। और इन दोनों मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स के एडिशन से जो मुझे सम मिल रहा है उसको मैंने नाम दे दिया है S3 का। सो ये बेसिक आपकी रिप्रेजेंटेशन है 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर की। पैरेलल एडर के एडवांटेजेस हैं हमारे पास बहुत सारे, लेकिन क्योंकि ये जो है 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए हेल्पफुल होता है, बट जो ईच एडर जो इसके अंदर माउंट हुआ होता है, ईच फुल एडर जो है वो इनपुट्स को रिसीव करता है, ए और बी इनपुट्स को की बिट्स को रिसीव कर रहा होता है इंस्टेंटेनियसली। However, the carry ports do not get their inputs till the earlier adder is done finishing their operation. This induces a delay, और ये डिले जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पैरेलल एडर के अंदर कितने फुल एडर जो है वो माउंट हुए हैं। अगर तो फुल एडर जो है ज्यादा है
तो डिले ज़्यादा होगा। आपकी जो कैरी जनरेट हो रहा होगा प्रीवियस स्टेज पे, जब तक एडिशन नहीं होगी तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो वर्क नहीं करेगी। तो जितने एडर्स किसी भी पैरेलल एडर के अंदर ज़्यादा होंगे उतना ही डिले जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। To implement the circuit of 4-bit parallel adder, we have to move towards the LabVIEW software, and we know that LabVIEW software has two main windows, block diagram and the front panel. So for the presentation of inputs and outputs, we have to move towards the front panel of the LabVIEW software. And on the front panel, firstly, I will basically include or place the inputs and outputs. So हमारे पास जो है 4-bit नंबर है, सही है। 4-bit दो नंबर्स हैं जिनको हमने ऐड करना है, ए और बी दोनों 4 बिट्स हैं, ए की भी 4 बिट्स हैं और बी की भी 4 बिट्स हैं। तो ए और बी दोनों की 4 बिट्स हैं, दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है, तो टोटल इनपुट्स हमारे पास कितनी हो गई 8। ठीक है, दोनों को हमने ऐड करना है ना, तो दोनों हमारे पास कितनी इनपुट्स हो गई 8, 4 और 4। तो हमारे पास 4 इनपुट्स हो जाएंगी। इसके अलावा कैरी इन हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनपुट होगी जो कि प्रीवियस स्टेज से आ रही है, उसको भी हम एज अ स्विच जो है प्लेस करेंगे अपने फ्रंट पैनल पर। तो हमारे पास 9 स्विचेस होंगे जिनको हमने अपने फ्रंट पैनल पर प्लेस करना है। अब अगर हम लोग जो है आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट हमारे पास 4 सम्स जनरेट हो रहे हैं। मतलब अगर ए की 4 बिट्स है और बी की 4 बिट्स है, पहले 2 बिट्स ऐड हुई, एक सम जनरेट हुआ। दूसरा जो मेरे पास फुल एडर होगा वो दोनों बिट्स को ऐड करेगा, सेकंड नंबर पर जो सिंगल बिट्स अवेलेबल होंगी उनको ऐड करके एक सम जनरेट करेगा जो कि S1 होगा। पहले वाला S0 था, फिर S1 मिलेगा। फिर जो थर्ड फुल एडर है वो थर्ड सिंगल बिट्स पर जो कंटेन नंबर होगा उसको ऐड करेगा। फिर फोर्थ जो फुल एडर है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को ऐड करेगा। ठीक है, तो 4 मेरे पास आउटपुट्स होंगी। इसके अलावा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होंगी वो जो एक मेरे पास कैरी जनरेट करेंगी वो भी आउटपुट के अकॉर्डिंग मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट को शो करने के लिए, कैरी आउट को शो करने के लिए मुझे एक एलईडी लगानी पड़ेगी। तो 4 सम हो गए और एक कैरी आउट हो गया, तो टोटल मेरे पास 5 आउटपुट्स हो गई, 9 इनपुट्स और 5 आउटपुट्स। तो मैं राइट क्लिक करूंगी अपने फ्रंट पैनल पे, मेरे पास कंट्रोल पैलेट ओपन हो जाएगा। अब इनपुट्स को शो करने के लिए जो कि 9 इनपुट्स है मेरे पास, मैं 9 स्विचेस लगाऊंगी। 9 स्विचेस के लिए मैंने पुश बटन लिया 1, इसको नाम दे दिया मैंने A0 का। उसके बाद मैंने एक और स्विच पिक किया, उसको मैंने पुश बटन जो था मेरे पास उसको मैंने A1 का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने एक और जो बूलियन पुश बटन पिक किया, उसको मैंने नाम दे दिया A2 का। देन मैंने राइट क्लिक किया, बूलियन पुश बटन, एक और जो मैंने पिक किया था स्विच उसको मैंने A4 का नाम दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि A3 का बेसिकली, क्योंकि A0 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो A3 का। उसके बाद फिर मैंने B नंबर को शो करना है, तो उसके लिए मैं एक पुश बटन लिया, उसको मैंने B0 का नाम दे दिया। फिर राइट क्लिक करके कंट्रोल पैलेट ओपन हो गया, पुश बटन को मैंने प्लेस कर दिया, उसको मैंने B1 का नाम दे दिया। फिर बूलियन पर जाके पुश बटन प्लेस कर दिया, उसको मैंने B2 का नाम दे दिया। देन मैंने बूलियन पर जाके पुश बटन को क्लिक करके प्लेस कर दिया, उसको मैंने B3 का नाम दे दिया। कैरी इन को शो करने के लिए मैं एक और स्विच पिक करूंगी, पुश बटन, उसको मैंने नाम दे दिया कैरी इन का। ओके, सो आउटपुट्स मेरे पास 4 हैं। ठीक है, उनको शो करने के लिए मैंने जो है 4 एलईडीज लगानी है। इसके अलावा एक और आउटपुट जो है वो कैरी आउट की है। ठीक है, उसको भी मैंने यहाँ पे शो करना है। तो पहले मेरे पास आउटपुट जो है वो S0 है, देन मेरे पास आउटपुट जो है वो है S1, सेकंड पे जो मेरे पास आउटपुट है, थर्ड पे जो मेरे पास आउटपुट है वो है S2, देन मेरे पास जो आउटपुट है वो है S3, देन मेरे पास जो आउटपुट है वो है कैरी आउट। ठीक है, तो
तो ये पूरी आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। देन मैं अब आ जाती हूँ अपने ब्लॉक डायग्राम की तरफ, और ब्लॉक डायग्राम पे मैंने प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट इस तरह से करनी है कि मेरे पास जो है पहले मैं फर्स्ट फुल एडर का सर्किट बनाऊंगी। ठीक है, फिर मैं वन बाय वन जो है इन स्विचेस को और इन सर्किट्स को यूज करते हुए जो है नेक्स्ट फुल एडर का सर्किट जो है वो जनरेट करती जाऊंगी। तो पहली जो बिट्स थी मेरे पास A0 और B0, ठीक है, उनको मैं जो हूँ शो कर दूंगी अपने, अटैच करूंगी सबसे पहले तो अपने फर्स्ट फुल एडर के साथ कैरी इन को लेते हुए। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपना राइट क्लिक करती हूँ तो मेरे पास फंक्शन पैरेट ओपन हो जाता है। फंक्शन पैरेट पे हमें पता है कि फुल एडर के सर्किट के अंदर दो आपके पास जो है एक्सक्लूसिव और गेट्स होते हैं, दो एंड गेट्स होते हैं और एक और गेट होता है। तो अब मैं ये सारे गेट्स जो है प्लेस कर लूंगी। राइट क्लिक करके फंक्शन पैरेट पर जाके बूलियन में मेरे पास एक्सक्लूसिव और पड़ा हुआ था। ठीक है, इसको मैंने प्लेस कर दिया और A0 को मैंने अटैच कर दिया इससे और B0 को इससे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड एक्सक्लूसिव और गेट लूंगी। सेकेंड एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो मुझे मैंने अटैच कर दिया। वो उसको आपने किस तरह से अटैच करना है कि आपने ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपने कैरी इन से अटैच कर दिया। उसके बाद मैं फिर क्लिक करूंगी, एंड गेट पिक कर लूंगी। सही है, एंड गेट पिक करके मैं क्या करूंगी, मैं पहले एक एंड गेट के अंदर A और B इनपुट दूंगी। सही है, A इनपुट दे दी, B इनपुट दे दी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, सेकेंड एंड गेट लूंगी। सेकेंड एंड गेट के अंदर मैंने एक तो कैरी इन देना है और दूसरा मेरे पास जो है जनरेट हो रही थी आउटपुट इनके एक्सक्लूसिव और के ऑपरेशन से वो देना है। उसके बाद मैं लेती हूँ और गेट जिसके अंदर इन दोनों एंड गेट के ऑपरेशन को कंबाइन करूंगी। सही है, उसके बाद मेरे पास जो है एक जो आउटपुट इस एक्सक्लूसिव और गेट से मिलनी है वो है सम की, जबकि इस वाले और गेट से जो मुझे आउटपुट मिलनी है वो है कैरी आउट। अब ये वाला जो कैरी आउट है ना, ये नेक्स्ट जो मेरा फुल एडर होगा उसका क्या बन जाएगा, कैरी इन। ठीक है, अब पहले तो मैं इस वाले के साथ अटैच कर देती हूँ अपनी सम 0 को। ठीक है, और ये मेरा एक बन गया फुल एडर 1 का सर्किट। ठीक है, फुल एडर 1 का सर्किट। अब मैं क्या करूंगी कि मेरे पास जो ये सर्किट है इसको सिलेक्ट करके देन मैं आ जाऊंगी अपने पास एडिट पर आकर क्रिएट सब वी आई पे क्लिक करूंगी। तो ये मेरे पास सब वी आई बन गई है जो मेरे बेसिकली शो कर रही है ऑपरेशंस को जो मुझे मिलने हैं फर्स्ट फुल एडर को लगाते हुए। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि मैं जो हूँ सेकेंड फुल एडर अटैच करूंगी। अभी के लिए हम जो है इस सब वी आई को छोड़ देते हैं और प्रॉपर जो है प्रेजेंटेशन रहने देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट हम जो है सब वी आई शो करेंगे ताकि हमारा सिस्टम जो है वो कम्पैक्ट हो जाए। ठीक है, अब हमने सेकेंड फुल एडर जो इम्प्लीमेंट करना है ना, उसके लिए आप लोग क्या करोगे कि आप लोग जो हो दो इनपुट्स अगेन लोगे, दो सिंगल बिट्स लोगे। दो सिंगल बिट्स कौन सी आएंगी आपके पास, दो सिंगल बिट्स आपके पास आएंगी A1 और B1। ठीक है, A1 और B1 आ गया आपके पास। उसके बाद मैं इन दोनों को जो है साइड पे कर देती हूँ। देन मैं क्या करूँगी, एक राइट क्लिक करूँगी, फंक्शन पैलेट ओपन हो जाएगा, बूलियन पर जाकर मैं दो एक्सक्लूसिव और गेट्स लूँगी। ठीक है, एक लिया मैंने और दूसरा मैंने पिक कर लिया। उसके अलावा मैं जो क्या करूँगी, फर्स्ट एक्सक्लूसिव और में A1 और B1, सेकेंड एक्सक्लूसिव और गेट के अंदर अब मैं क्या करूँगी, सेकेंड एक्सक्लूसिव और में एक तो मेरी आउटपुट आ जाएगी फर्स्ट एक्सक्लूसिव और वाली, और दूसरी हमारे पास कौन सी आनी होती है, कैरी इन की। अब कैरी इन जो है वो मेरे पास कौन सा कैरी इन है, जो कि मेरे पिछले फुल एडर का कैरी आउट था। वो कौन सा था, ये वाला था। तो मैंने यहाँ से जो है आउटपुट
इसके अंदर दे देनी है, ठीक है। उसके बाद अब जो सेकेंड फुल एडर के अंदर जो है मैंने कैरी का फिनोमेना जो है वो बनाना है, उसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगी और 2 एंड गेट जो है वो पिक कर लूंगी, ठीक है। एंड गेट पिक कर लिया, 2 एंड गेट पिक कर लिया। फर्स्ट एंड गेट के अंदर जो है मैंने ए और बी इनपुट्स दे दी। सेकेंड एंड गेट के अंदर जो है वो मैंने क्या करना है, सेकेंड एंड गेट के अंदर एक तो मैंने देनी है आउटपुट इस एक्सक्लूसिव ऑर गेट की, वो दे दी। और सेकंड जो मेरे पास इनपुट है थी कैरी आउट की प्रीवियस फुल एडर की, वो दूंगी, ठीक है। ये मैंने दे दी। ये मेरा सर्किट जो है, अब 2 आउटपुट्स बन गई। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मैंने एक और गेट लगाना है, तो फिर मैं राइट क्लिक करूंगी, बूलियन पर चली जाऊंगी, वहां से मैं और गेट पिक करूंगी। और गेट के अंदर जो है फर्स्ट एंड गेट की आउटपुट दूंगी, सेकेंड एंड गेट की आउटपुट दूंगी। अब इस एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट में जो मुझे मिलेगा वो सम होगा जो इस फुल एडर का होगा। फर्स्ट फुल एडर का जो है, सेकेंड फुल एडर का जो मेरा सम है वो मिलेगा, और इधर मुझे कैरी मिलेगा, ठीक है। तो जो यहाँ सम मिलेगा उसको मैं क्या नाम दूंगी, S1 का, ठीक है। S1 इससे मैं अटैच करके इससे अटैच कर दूंगी। और यहाँ जो मुझे मिलना है ये है कैरी आउट, जो कि नेक्स्ट फुल एडर का क्या बनेगा, कैरी इन। कैरी इन, अब मैंने थर्ड जो है फुल एडर बनाना है। थर्ड फुल एडर के लिए मैं राइट क्लिक करूंगी, फिर चली जाऊंगी फंक्शन पैलेट, ओपन हो जाएगा। फंक्शन पैलेट के अंदर जाके मैं पहला एक्सक्लूसिव ऑर गेट जो है वो पिक कर लूंगी, ठीक है। सेकेंड एक्सक्लूसिव ऑर गेट भी मैं पिक कर लूंगी, बूलियन पर जाकर जो है मैं सेकेंड एक्सक्लूसिव ऑर गेट पिक कर लूंगी। ये मेरे पास सेकेंड एक्सक्लूसिव ऑर गेट आ गया है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैंने दोनों नंबर्स को जो है ऐड करना है, ठीक है। अब दोनों नंबर्स यहाँ पे मेरे पास सेकेंड नंबर्स कौन से हैं, थर्ड फुल एडर के हैं, A2 एंड A2 है आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो है ना वो है B2, ठीक है। तो A2 और B2 को ले लेती हूँ मैं, सिंपल। A2 को मैं पहली इनपुट के अंदर दे दूंगी, B2 को मैं एक्सक्लूसिव ऑर की सेकेंड इनपुट पर दे दूंगी, ठीक है। अब जो सेकेंड एक्सक्लूसिव ऑर गेट है उसके अंदर फर्स्ट एक्सक्लूसिव ऑर गेट की आउटपुट आएगी, और सेकेंड एक्सक्लूसिव ऑर की सेकेंड इनपुट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, प्रीवियस स्टेज की कैरी आउटपुट, ठीक है। तो प्रीवियस स्टेज का कैरी कहाँ मिल रहा था, इस जगह पर, इसको मैंने उठाकर इसके अंदर दे देना है, ठीक है। अब यहाँ जो मुझे आउटपुट मिलेगी ना ये होगी सम 3, ठीक है, या सम 2, हम लोग 0 से स्टार्ट करें तो सम 2 होगा, जो थर्ड फुल एडर की सम आउटपुट होगी। अब कैरी का सीक्वेंस शो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2 एंड गेट्स। तो बूलियन पर चले जाएंगे, वहां से पहला एंड गेट पिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद बूलियन पर जाके दूसरा एंड गेट पिक करेंगे, ठीक है। पहला एंड गेट के अंदर हम लोग जो है A और B दे देंगे, सही है। सेकेंड एंड गेट के अंदर जो है आप लोग क्या दोगे, एक तो आप लोगों ने देना है फर्स्ट एक्सक्लूसिव ऑर गेट की आउटपुट को, सही है, वो देना है। और सेकेंड इनपुट के अंदर जो सेकेंड एंड गेट की सेकेंड इनपुट है उसके अंदर आपने हमेशा देना होता है कैरी, ठीक है। कैरी जो आपकी प्रीवियस स्टेज से जनरेट होता है वो यहाँ हो रहा था तो मैंने यहाँ अटैच कर दिया। अब इस आउटपुट को और इसको कंबाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें और गेट चाहिए। तो मैं अगेन बूलियन पर जाके और गेट को पिक कर लूंगी, और गेट के अंदर मैं फर्स्ट एंड गेट की आउटपुट दूंगी, सेकेंड एंड गेट की आउटपुट दूंगी। अब इस आउटपुट पर जो मुझे मिलेगा वो होगा मेरा कैरी आउट, जो दूसरा है, जो लास्ट मेरे पास फुल एडर है उसका कैरी इन बनेगा। और जो यहाँ पे मुझे मिलना है वो मेरा सम होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगा देनी है अपनी एक LED, ठीक है। LED लग गई, हो गया। उसके बाद मेरा ये थर्ड फुल एडर बन गया, ये फर्स्ट फुल एडर था, ये सेकंड फुल एडर था। अब लास्ट फुल एडर जो मेरे पास रह गया है वो है आपके पास फोर्थ फुल एडर। उसमें हम लोग A3 और B3 दो सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करें, ठीक है। सेम फिनोमेना, हमने राइट क्लिक करना है, फंक्शन पैलेट ओपन हो जाएगा, देन हम लोग बूलियन पर चले जाएंगे, और बूलियन पर जाके हमने 2 एक्सक्लूसिव ऑर गेट्स जो हैं वो पिक कर लेने हैं, ठीक है। 2 एक्सक्लूसिव ऑर गेट्स मैंने पिक कर लिए।
अब पहले के अंदर मैंने A3 और B3 को दे दिया, और सेकंड के अंदर मैंने क्या करना होता है, हमेशा एक तो पहले एक्सक्लूसिव ऑर गेट की आउटपुट देना होती है, और दूसरी इनपुट जो मेरे सेकंड एक्सक्लूसिव ऑर गेट की है वो बेसिकली अटैच होगी प्रीवियस स्टेज के कैरी से। तो प्रीवियस स्टेज का कैरी ये था, मैंने इसको अटैच कर दिया। ठीक है, अब इसकी आउटपुट पे जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा, सम। ठीक है, सम जो मेरे पैरेलल एडर के अंदर लास्ट फुल एडर का होगा, उसको मैंने S3 LED के तौर पे शो करना है, तो मैंने S3 को इससे अटैच कर दिया। अब जो मेरी कैरी थी, कैरी के फिनोमेना को शो करने के लिए हमें दो एंड गेट्स चाहिए होते हैं। राइट क्लिक करेंगे, फंक्शन पैलेट पर चले जाएंगे, वहां पर जाके हमने दो एंड गेट्स पिक कर लेने हैं। ठीक है, बूलियन पर जाकर दो एंड गेट्स मैंने पिक कर लिए। पिक करके उसके बाद जो है मैंने अटैचमेंट करनी है। पहले एंड गेट के अंदर A3 और B3, सेकेंड एंड गेट के अंदर आप लोगों ने एक तो पहले एक्सक्लूसिव ऑर गेट की इनपुट देनी होती है। ठीक है, वो दे दोगे, आउटपुट देनी होती है पहले एक्सक्लूसिव ऑर गेट की, और दूसरी इनपुट जो आपके दूसरे एंड गेट की होती है वो प्रीवियस स्टेज के कैरी से अटैच होते हैं, तो मैंने वहां अटैच कर दी। अब इन दोनों की आउटपुट को कंबाइन करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगी, बूलियन पर चली जाऊंगी फंक्शन पैलेट के अंदर, वहां पर जाके मैंने ऑर गेट पिक करना है, उसको अटैच कर देना है, दोनों एंड गेट्स को मैंने देना है, उनके आउटपुट को और के अंदर दे देना है। अब यहाँ पे जो मेरा कैरी जनरेट हो रहा है, ये कैरी आउट है, जो मेरे पूरे पैरेलल एडर का कैरी आउट है। ठीक है, तो मैंने इसको शो करने के लिए LED से अटैच कर दिया। अब मेरे चारों फुल एडर्स जो हैं वो बन चुके हैं। 4 बिट नंबर्स जो दो थे A और B, उन दोनों को ऐड करने के लिए, ये पहला एडर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब अगर मैं चाहती हूँ तो मैं इनकी सब VIs बना सकती हूँ इनको कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट करूँगी, सेलेक्ट करके एडिट पर जाकर क्रिएट सब VI। ठीक है, इसको अगर मैं चाहती हूँ कंबाइन करना तो सेलेक्ट करके एडिट पर जाकर क्रिएट सब VI। सही है, इसको मैं कंबाइन करना चाहती हूँ, इनपुट्स को छोड़ के फंक्शन सेलेक्ट करके एडिट पर जाके क्रिएट सब VI। सही है, इसको सिलेक्ट करके एडिट पर चली जाऊंगी, वहां पे जाके क्रिएट सब VI। तो ये मेरा पूरा जो है सिस्टम कंपैक्ट हो गया। अब इसके रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए मैं चली जाती हूँ फ्रंट पैनल पे। ठीक है, फ्रंट पैनल पे हमने जो है ना अभी इनपुट देखी थी, लास्ट में जो नंबर हमने थ्योरेटिकली एक नंबर को डिस्कस किया था, उसी नंबर को मैं ऐड करी हूँ। ठीक है, 2 नंबर्स थे और B, दोनों में 4-4 बिट्स थी। तो पहला जो नंबर A था उसके अंदर जो बिट्स थी वो थी 1011, तो A0 उसमें 1 था, A1 उसमें 1 था। ठीक है, A2 जो है वो 0 ही था, A3 भी 1 था। ठीक है, अब जो B था बेसिकली आपके पास, उसमें जो है नंबर में वहाँ पर जो सीक्वेंस था वो था कि आपने B0 1 था, B1 जो है वो 0 ही था, B2 1 था और B3 भी 1 था। ठीक है, इसके अलावा कैरी इन आप लोग वहाँ पर 0 कंसीडर कर रहे थे, तो मैंने यहाँ 0 ही रहने देना है। अब इसके रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए मैंने रन कॉन्टिन्यूसली पे या रन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो हमने वहाँ पे देखा था कि अगर मैं A0 को B0 में ऐड करती हूँ तो क्या होता है, मेरे पास 0। ठीक है, क्यों 0 1 बनता है, तो सम 0 आ गया। फिर एक कैरी जनरेट होना था, एक कैरी अगर मैंने A1 के और B1 के अंदर एक कैरी डालूं तो फिर 0 1 बना था, तो सम 0 आ गया और 1 कैरी आ गया। 1 कैरी फिर से इस सीक्वेंस A2 और B2 में ऐड होगा तो 2 बन जाएगा, 2 की बाइनरी फॉर्म 0 1 है, तो सम 0 आ गया और एक कैरी मिल गया। अब एक कैरी और 2 नंबर से 1 + 1 + 1 3, तो सम 1 हो गया, कैरी आपको कैरी आउट मिल गया। यही आपका वहां पे रिजल्ट थ्योरेटिकली भी आंसर निकला था कि सम 3 1 था और कैरी आउट 1 था।
So this is how we can perform the experiment of 4-bit parallel adder on LabVIEW software. From this experiment, we have learned that what is the parallel adder, what is the need of the parallel adder, and how we can implement 4-bit parallel adder consisting of 4 full adders on LabVIEW software. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.